Hello everyone. My name is Hareem And my name is Hamna. and we are both from class 8 and the students of Mission School Dalwal. A Shot in the Dark by Hector Huff Munrosaki explores the theme of misconception of how an elder and observant man misinterprets a young boy to be a fraud and later realizes his mistake. अंधेरे में तीर चलाना ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 8 की बुक की कहानी है। इसके मुसन्निफ हेक्टर हफ मुनरोसाकी हैं। ये कहानी गलतफहमी के बारे में है। ये कहानी एक तजर्बाकार सियासतदान और एक नौजवान लड़के बर्टी के बारे में है। कहानी शुरू होती है फिलिप स्लेदरबाय के ट्रेन में सफ़र के साथ, जो इंग्लैंड के एक शहर यॉर्कशायर में एक मशहूर और कामयाब सियासतदान मिसेस सॉल्ट पेन जैगो से मिलना जा रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद हासिल कर सके, क्योंकि यॉर्कशायर की पार्लियामेंट में एक सीट खाली थी जिस पर उसकी नज़र थी, और वो उन खातून का दिल जीत लेना चाहता था और उनकी मदद हासिल करना चाहता था। फिलिप स्लेदरबाय ट्रेन में सफ़र करके मिसेस सॉल्ट पेन जैगो के शहर जा रहा था। ट्रेन में बैठते ही उसे अपना एक क्लब मेंबर दिख गया। वो भी कहीं खड़ा था और ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। फिलिप स्लेदरबाय ने गपशप के लिए उसे अपने पास बुलाया। Oh, Slatherby, where are you going? I am going to visit Miss Salt Penjago for the weekend. I believe you will have a great time with her. She is famous to be an excellent hostess. She will also be useful to you in that parliament project. Okay, your train is leaving. Goodbye. Goodbye and see you. फिलिप स्लेदरबाय अब ट्रेन में सीधा होकर बैठ गया था। उसने अपने सामने पड़े रिसाले को उठाया और उसके पेज उलट पुलट करना शुरू कर दिया। एक रिसाले को उठाकर उसके पेज को उलट पुलट करना शुरू कर देता है और फिर तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक आदमी पर पड़ी जो कि 20 या 22 साल का होगा, जिसका नाम बर्टी था। वो अपनी जेब में से कुछ चीज़ें निकालता और बार बार यही अमल दोहरा रहा था। वो अपनी वेस्टकोट की जेब में से कुछ पैसे निकालता और बहुत ही उदासी के साथ उनको देखता। इसके अलावा उसके पास सिगरेट केस, माचिस, चाबी, पेंसिल केस और रेलवे टिकट भी था। एक 20 या 22 साल के लड़के पर पड़ती है जो बहुत बेचैनी से अपनी सारी पॉकेट्स में से चीज़ें निकाल कर कुछ तलाश कर रहा है। वो बार बार यही अमल दोहरा रहा था। वो अपनी वेस्टकोट में से कुछ पैसे निकालता था और बड़ी उदासी से उसे देखता था। फिलिप स्लेदरबाय रिसाले के पेजेस को उलट पुलट कर देखना जारी रखता है और उस लड़के को इग्नोर करता है। आखिरकार वो लड़का खुद बात करना शुरू कर देता है। Miss Sir, didn't I hear you say you were going to stay with Mrs. Salt Penjago at Brill Manor? What a coincidence. She is my mother, you know. I am coming there on Monday evening, so we shall meet. I am quite a stranger. I haven't seen my mother for 6 months at least. By the way, I am Bertie, the second son of Mrs. Salt Penjago. What a lucky coincidence that I meet someone who knows my mother when I am in trouble. Have you lost something, haven't you? Not exactly, but left behind, which is almost as bad as losing my coin purse with 4 quid in it. All my worldly wealth at this moment. It was in my pocket just before I was starting my journey. And then I wanted to seal a letter, and my coin purse has my crest on it. So I whipped it out to seal it with, and like an idiot, I left it on the table. I know that I should take it in my pocket, but I didn't. Now I will have to pay taxi and my ticket, but I have this small money left, which is not enough. Why don't you go straight to home if you have no money? I am stopping in a little hotel near Bronquoy for 3 days. I will do fishing there. But the thing is that nobody knows me in that place. We can bill tips to the waiters and the taxi from the station and my ticket to Brill. All together will make 3 pounds, 3 twig. If you lend me 3 pounds, I shall be very grateful to you. It will make me out of trouble. I think I can manage that. Thanks a lot.
it's jolly good of you that I have met someone who know my mother. What is your crush, by the way? Not a very common one. It's a demi-line holding a crosslet in its paw. फिलिप स्लेदरबाय को बेटी की मोहर वाली बात पर उस पर शक होता है और वो उसको कहता है, When your mother wrote to me, giving me a list of trains, she had a running greyhound on the letterhead. That is a Jago crest. Demi-line is a Sol pen crest. We have the right to use both, but I use the demi-line because we are really Sol pens. फिलिप स्लेदरबाय को अब भी बेटी की बात पर यकीन नहीं आता। वो उससे कुछ और सवाल करता है ताकि वो उसका झूठ पकड़ सके। I have never met your mother, but my introduction to her was through political friends. How does she look like? Does she look like you? Does she resemble you in features? Please tell me so that I could easily recognize her if she comes on the station to pick me up. Well, she looks like me. She has dark brown hair and fair complexion. अब तो फिलिप स्लेदरबाय का शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि वो जानता था मिसेस सॉल्ट पेन जैगो के बाल डार्क ब्राउन नहीं बल्कि ब्लॉन्ड हैं, यानी सुनहरी रंग के। लेकिन बेटी कह रहा है कि उसकी अम्मी के बाल डार्क ब्राउन हैं जैसे कि उसके अपने हैं। My station has come, sir. Okay, goodbye. You are forgetting something. I will not give you 3 pounds or 3 shillings. But you said you will. I know I did so, but later on I decided to check you if you are speaking the truth. The error on the crest made me alert, and I had met Mr. Jago. She had blonde hair, not dark brown. बेटी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो फिलिप स्लेदरबाय की बातों का जवाब देता, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी और उस स्टेशन पर उतरना था। इसलिए वो गुस्से से ट्रेन में से उतर गया। Well, he hasn't opened a fishing expedition by catching a flat. फिलिप स्लेदरबाय ने तजिया अंदाज में कहा कि उसे अपनी फ़िशिंग एक्सपीडिशन खोलने का मौका ही नहीं मिला। वो अपनी चालाकी और होशियारी पे बहुत खुश और मुतमईन था। वो उस लड़के के धोखे में नहीं आया। वो अपनी दिलचस्प कहानी सबको सुनाने के लिए तैयार था। उसने अपने तसव्वुरात में मिसेस सॉल्ट पेन जैगो और तमाम मेहमानों को ये कहानी सुना चुकी थी। स्टेशन पर फुटमैन और क्लाउड पीपल, जो कि एक वकील था, उन्होंने उसे वेलकम किया। फुटमैन को मिसेस सॉल्ट पेन जैगो ने भेजा था उन दोनों को स्टेशन से लेकर आने के लिए। क्लाउड पीपल स्लेदरबाय से मिलता है। Hello, Slatherby. You are spending the weekend at Brill. Good, excellent. We will have a round of golf together tomorrow. अब एक शानदार गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। Here we are. Here's the car waiting for us. इस गाड़ी के दरवाज़ों पे 2 मोहरें लगी होती हैं, एक ग्रे हाउंड और एक डेमी लाइन। स्लेदरबाय तो होनोरिया की गाड़ी पर 2 मोहरों को देखकर सकते में आ जाता है। तभी क्लाउड पीपल उसे गाड़ियों के बारे में मालूमात दे रहा होता है और बोलता ही जा रहा होता है। This is a different sort of vehicle to the horse-drawn carriage where our grandfathers used to travel. And from inside, it's like a hotel room. लेकिन अब स्लेदरबाय को क्या हो गया है? उसने क्लाउड पीपल की एक बात भी ना सुनी और उसकी नज़रें तो दरवाज़ों पे लगी मोहरों पे जमी थीं। क्लाउड पीपल को उसकी खामोशी की कोई परवाह ना थी। इतने घंटे ट्रेन के सफ़र में चुप रहने के बाद उसको अब बोलने का मौका मिला था और उसने अपनी कहानियाँ सुनाना जारी रखी। अब वो कार में बैठ गए थे और कार चल पड़ी थी। तभी क्लाउड पीपल स्लेदरबाय को खबरों के बारे में अपनी मालूमात दे रहा था और अपनी कहानियाँ सुना रहा था। तभी गाड़ी होनोरिया के रास्ते पर मुड़ी तो क्लाउड पीपल ने महसूस किया कि स्लेदरबाय उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। उसने स्लेदरबाय की तवज्जो हासिल करने के लिए मिसेस सॉल्ट पेन जैगो के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। Mrs. Salt Pan Jago is a brilliant woman, a clear thinker and a level-headed. Knows exactly when to take up an individual or a cause and exactly when to let him or it drop. An influential woman. She has a good appearance too, till she made an idiotic change. Change? What change? Are you talking about her hair?
Oh, of course, you have known her only lately. She had the beautiful dark brown hair, which went very well for her fresh complexion. Then one day, about 5 weeks ago, she shocked everyone with her brilliant blonde. क्लाउड पीपल ने सदर बाय को बताया कि मिसेस सॉल्ट पेन जैगो के बहुत ही खूबसूरत डार्क ब्राउन बाल होते थे, लेकिन 3 हफ्ते पहले उन्होंने अपने बालों का रंग तब्दील करके ब्लॉन्ड यानी सुनहरा कर लिया। अब इसे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि बर्टी झूठ नहीं बोल रहा था कि बल्कि स्लेदर बाय को खुद बर्टी को समझने में गलती हो गई है। तभी क्लाउड पीपल को उसकी शक्ल देखकर अंदाज़ा हुआ कि इसके साथ कुछ मसला है। क्लाउड पीपल ने स्लेदर बाय से पूछा, We have arrived, but what happened to you? You look rather ill. अब स्लेदर बाय उसे क्या बताता कि उसने खुद ही अपना करियर ख़राब कर लिया है। उसने अपनी बेजा होशियारी और चालाकी के बास बर्टी को समझने में गलती की है। अब एक माँ ऐसे शख्स की मदद कैसे करेगी जिसने उसके नौजवान बेटे को स्टेशन पे बेयारो मददगार अकेला तन्हा छोड़ दिया था।